Students, the topic of today is producers, consumers and decomposers, and we are going to discuss food chain and food web as well. So first of all, let's start with the producers. Green plants are called producers. Producers are organisms that make their own food by a process called photosynthesis. They capture energy from sunlight, water from soil and carbon dioxide from air to produce their own food. Basically producers उन्हें कहते हैं जो कि they prepare their own food like the plants. They prepare their own food by using the carbon dioxide, sunlight, soil and water and air from the surroundings. As you can see in the picture that a plant is capturing sunlight, it's taking oxygen, it is converting the food into the form of glucose, and it has roots that absorb mineral and water from the soil. So this is the way they capture their needs from the surrounding and they prepare their own food, and basically they are called producers because they produce their own food. They are responsible for preparing their own food. Green pigment in plants helps to trap the sunlight. Basically the color that is present in the plant, that is green, it helps the plants to trap the sunlight. It captures the sunlight basically and convert the food into the food and oxygen. It gives the oxygen out and it gives it prepares its food in the form of glucose. As you can see in the formula, water plus carbon dioxide and sunlight and green pigment initiate the process, and because of this oxygen is released from the plant and glucose is the food for the plant. इस तरीके से जो है वो फूड प्रिपेयर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट जो है वो इनिशिएट करवाता है प्रोसेस और इसकी वजह से ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है. Now what are consumers? A consumer is an organism that cannot make its own food. It must eat producers or other organism for energy. All animals and humans are consumers. Basically human और इंसान और जानवर जो हैं वो कंज्यूमर की एग्जांपल हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. दे आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स और प्लांट्स. या तो वो किसी प्लांट्स को खाते हैं या वो एनिमल्स को खाते हैं, या तो वो प्रोड्यूसर्स को खा जाते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं. लाइक अस, हम जो है वो वेजिटेबल्स भी खाते हैं. वेजिटेबल्स कम्स फ्रॉम द प्लांट, और हम दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. एंड देयर आर सम एनिमल्स जो कि एनिमल्स ही को खाते हैं और या फिर प्लांट्स को खाते हैं. तो इसकी एग्जांपल में है देयर आर three types of consumer basically: the herbivores, carnivores and omnivores. You all know herbivores are primary consumer because they only eat plants, that's why they are called primary consumer. Then carnivores are secondary consumers because they eat other organism. Then omnivores, they are tertiary consumer because they eat. And we have scavengers and decomposers. Now let's discuss carnivores. Carnivores are animals को कहते हैं जो कि eat करते हैं. They eat only animals and other flesh of other animals. गोश्त खाते हैं और दूसरे animals को खाते हैं. Like carnivores are tiger and lion, और उनके बड़े sharp teeth होते हैं जो कि tear कर सकते हैं easily flesh कहते हैं गोश्त को. Carnivores जो है वो आराम से ढूंढते हैं और कैच करते हैं, अपने प्रे को शिकार करते हैं और बड़े खामोशी से अपने प्रे की तरफ जाके अटैक करते हैं. देन वी हैव ओमनीवर्स. ओमनीवर्स आर टर्शियरी कंज्यूमर. ये दोनों चीज़ें खाते हैं. लाइक अस और बेयर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ओमनीवर्स. दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ बिकॉज ऑफ दोज टीथ. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो टीथ होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के, कुछ टेयर करने के लिए काम आते हैं, कुछ बाइट करने के काम आते हैं. तो हम जो है ओमनीवर्स हैं. दैट इज़ वाई वी कैन ईजिली eat plant and meat. Scavengers, animals that feed on the bodies of dead animals are called scavengers. For example, vulture and worms. वो animal जो कि dead bodies को खाएं वो scavengers होते हैं. Crow is also example of scavengers because it eats the dead bodies. Now decomposers. Decomposers are organisms that get energy by decaying or break down the remaining dead organism. ये basically decay करते हैं. जो जितनी भी dead चीज़ें होती हैं वो जब गल जाती है हमारी ज़मीन में, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये decaying करवाते भी हैं और ब्रेक डाउन भी करवाते हैं dead organism की, और ये नेचुरल रिसाइकलर है. ठीक है, ये नेचुरल तरीके से जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रिसाइकिल कर देते हैं. मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगीज आर डिकम्पोजर्स. ये जो एग्जांपल हैं ये डिकम्पोजर्स की हैं. व्हेन an organism dies, decomposers decay body by a process called decomposition. Basically it is a process of decomposition. The leftover materials
such as water, carbon dioxide and minerals then be reused by producers to make their food through a process called photosynthesis. जब ये डिकम्पोजिशन हो जाती है हमारी सॉइल के अंदर, तो बेसिकली हमारी सॉइल के अंदर क्या है, रूट्स, और हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इस सॉइल से इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपना प्रोसेस जो है फूड का वो बनाते हैं, उसके थ्रू उनका फूड का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है। क्योंकि जो भी चीज़ें डिके हो गई हैं सॉइल के अंदर, वो सारी क्या है, कहाँ पे सॉइल के अंदर क्या है, जड़ें हैं, वो जड़ें क्या करेंगी, वहाँ से मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर अपना फूड का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज फूड चेन। A food chain describes how different organisms eat and transfer energy to each other. फूड चेन बताती है कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी एक दूसरे से। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। हमेशा जो फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। एज यू नो, प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट है जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। आफ्टर दैट प्रोड्यूसर को कौन ईट करते हैं, कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स को जो ईट करते हैं कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स, और ओमनीवोर्स जब उनकी डेथ हो जाती है, जैसे कोई भी एनिमल जो मर जाता है तो उसको स्कैवेंजर्स खाते हैं। स्कैवेंजर्स को भी जब वो डिकम्पोज होना शुरू होते हैं तो फिर उनको कौन खाता है, बैक्टीरियाज एंड फंगी, ये खाते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर डिकम्पोजिशन है, जो हमारी जो भी चीज़ें डिके हो चुकी है वो दोबारा किसके यूज़ में आती हैं, प्रोड्यूसर के। तो इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। नाउ फूड वेब। फूड वेब consist of many food chains in a single ecosystem. फूड वेब कंसिस्ट करता है बहुत सारी चेन के, फूड चेन के, जो कि हमारे इकोसिस्टम में है। इकोसिस्टम कहते हैं एक लार्ज कम्युनिटी को जिसमें ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करें एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करें और आपस में इंटरेक्ट करें, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। नाउ फूड वेब आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ये आपस में कनेक्टेड फूड चेन है, लाइक एज वी डिस्कस प्रीवियसली कि एक तरीके से प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स तक हमारा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। देन कार्निवोर्स जो है ओमनीवोर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। आफ्टर दैट स्कैवेंजर्स, देन डिकम्पोजर्स, और फिर दोबारा से वो लेफ्ट ओवर जो डिकम्पोजिशन है वो हमारी दोबारा से प्रोड्यूसर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये जो साइकिल है ये चलता चला जा रहा है। एनर्जी सन से मिल रही है प्रोड्यूसर को, फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, देन कंज्यूमर से कार्निवोर, कार्निवोर से ओमनीवोर्स, दैन स्कैवेंजर्स, दैन डिकम्पोजर्स, एंड देन जो लेफ्ट ओवर डिकम्पोजिशन है, जो डिके बच गया है, वो प्रोड्यूसर दोबारा से यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, यानी प्लांट्स जो है यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स हैं, बट बिकॉज मोस्ट कंज्यूमर्स ईट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप के फूड को खाते हैं। लाइक जो टाइगर है वो हिप्पो को भी खाता है और जिराफ को भी खाता है, और ये जिराफ और हिप्पो जो है वो प्लांट्स को खाते हैं। मतलब दे ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे ऑल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उससे जो चीज़ें मौजूद हैं उसको भी खा रहे हैं, एंड कैन बी ईटेड बाय वैरायटी ऑफ अदर कंज्यूमर्स। और फिर उनको कोई और खा रहा है, तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल है, कोई ना कोई किसी को ईट कर रहा है। इफ़ यू विल सी हियर कि प्लांट को डियर ने खाया, और डियर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी खा रही है। डियर को डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स भी खा रहे हैं, ठीक है। डियर इटसेल्फ क्या है, वो भी कंज्यूमर है, और उसको डिफरेंट तरह के कंज्यूमर, लाइक जो वाइल्ड एनिमल है वो भी उसे ईट कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स जो है वो किसी बर्ड्स को खा रहे हैं, और कुछ बर्ड्स जो हैं वो वर्म्स को खा रही हैं। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस साइकिल कि आपस में हर एनिमल कोई ना कोई किसी को एनर्जी ट्रांसफ़र कर ही रहा है। प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो गए, कंज्यूमर आपस में एक्सचेंज करें, एंड दे हैव वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू ईट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एनिमल्स। सो आई होप यू ऑल गेट इट कि व्हाट इज़ फूड चेन, व्हाट इज़ फूड वेब, and what are the producers, consumers and decomposers. So let me recall it. Producers उन्हें कहते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, लाइक प्लांट्स, और प्लांट्स जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो सनलाइट है उसको ट्रैप करते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके फूड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और ग्रीन पिगमेंट की मदद से जो है अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है, दैन ग्लूकोज भी बनता है जो कि इनका फूड है। दैन कंज्यूमर जो है वो दूसरा एनिमल्स को खाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, लाइक अस, लाइक अदर एनिमल्स।
फिर उसमें डिफरेंट एग्जांपल हैं लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। स्कैवेंजर्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। देन डिकम्पोजर्स जो कि डेड बॉडीज़ को डिके करके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे सॉइल में आ जाता है, और फिर वही जो लेफ्ट ओवर डिकम्पोजिशन है वो प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर रूट्स एंड प्रिपेयर देयर फूड। और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। अच्छा, फूड चेन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ फूड चेन? कि फूड चेन ये बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को वैरायटी ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं खाने के। और हमेशा स्टार्ट जो फूड चेन होती है प्रोड्यूसर्स होती है। दैन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर से ओमनीवोर्स, फिर ओमनीवोर्स से स्कैवेंजर्स, फिर डिकम्पोजर्स के बाद जो खाते हैं जो बच जाता है लेफ्ट ओवर डिकम्पोजिशन वो हमारे दोबारा से प्रोड्यूसर यूटिलाइज़ कर लेते हैं। फिर दोबारा से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फूड वेब क्या है? फूड वेब बेसिकली बताता है कि हमारे इकोसिस्टम में जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे को एनर्जी और वैरायटी ऑफ फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक एक एनिमल जो है उसके इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ food to eat. So it is all about this chapter. I hope you all get it. So take care of yourself. Allah Hafiz students. If you feel any sort of difficulty, you can ask to me in the recorded class as well as on the ad modo. So take care of yourself. Allah Hafiz.